Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me. This is a explanation video to bring in some clarity on Sumbul and Farman's guidance, of course related with Aditi as well, because a lot of you were getting confused. So this is my last explanation to you people. You can take it or leave it. I think I will take a last attempt at explaining my guidance, because a lot of you people are calling that this is a deception. The first thing is that if you are feeling deceptive, if you are feeling that somebody is throwing a deception at you, then why at all watch the video? Some of you are like, I don't trust the tarot guidance, I only trust the God. Very good. I absolutely have no problem with that. If you want to trust a God, why not? I myself, I am a big time Krishna Bhakt, and God to me is the supreme. But I don't use and throw the term God for my convenience. I will not be like watching tarot guidance all my life, putting my 15 hours into watching tarot guidance, and then telling ki after putting 15 hours, 10 hours watching tarot guidance, watching 10 tarot readers, and then telling ki I trust God. If you really trust God, and if there is some value to what you are saying, then you know what, you should idly be sitting on some channel where they are talking about God, whosoever God you believe in Allah, you believe in Jesus, you believe in Krishna, you believe in दुर्गा माई, यू बिलीव इन महादेव, जो भी भगवान को आप बिलीव करते हैं, आपको उनके चैनल पे जाके उनकी क्या फिलॉसफी है उस पे आपको रहना चाहिए. टैरो गाइडेंस के चैनल पे आके टैरो गाइडेंस दिन रात देख के, 10 टैरो रीडर्स का दिन रात टैरो गाइडेंस देख के, फिर जब टैरो गाइडेंस आपके मन के मुताबिक नहीं हो, तब ये बोलना कि आई डोंट ट्रस्ट टैरो गाइडेंस, आई ट्रस्ट गॉड, इज नॉट ओनली यू आर यूजिंग गॉड फॉर योर ओन कन्वीनियंस, बट यू आर ऑल्सो शोइंग कि आपके कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है. जब मैं 10 घंटे टीवी सीरियल्स देखती हूं तो मैं टीवी सीरियल के लोगों को गाली नहीं दे सकती हूं. व्हेन आई टेल दैट TV serials are meaningless, I tell that with a conviction, because I never watched TV serials in my life. For 20 years at least I have not watched TV serials. Therefore, when I say something, it comes with a lot of conviction and lot of truth in it. But when you say that you don't trust tarot and you spend your 10 hours and 15 hours watching different tarot channels, then there is, not only are you fooling yourself and fooling everybody around you, but you are also fooling God, your own God जिसका नाम आप लेते हो. तो अगर God को ट्रस्ट करते हो तो God के चैनल पे जाइए. अगर कृष्णा को ट्रस्ट करते हैं, टैरो को ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आपको कृष्ण भक्ति के चैनल पे होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के चैनल पे होना चाहिए, कृष्ण की भक्ति सुननी चाहिए, कृष्ण की लीला सुननी चाहिए, कृष्ण क्या क्या मिरेकल्स करते हैं वो सब सुनना चाहिए. अगर आप क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, जीसस में बिलीव करते हैं और टैरो में बिलीव नहीं करते हैं, तो 5 घंटा टैरो गाइडेंस मत देखिए, 5 घंटा जीसस के मिशन को समझने में स्पेंड करिए. ओके, एंड आई एम अ टैरो रीडर हु नॉट ओनली रीड्स कार्ड बट आई ऑल्सो रीड इन बिटवीन द कार्ड्स. सो डोंट ट्राई टू फूल मी, डोंट थ्रो दिस डिसेप्शन का गुगली ऑन मी, डोंट थ्रो योर भगवान जी का दिस गॉड का गुगली ऑन मी. आई वॉच पीपल. I am more than a tarot reader. I am a therapist. I am an applied psychologist. So don't try to give me all this shit on my channel. I will not take it. You cannot be on my channel. I am very open to difference of opinion, but I am not open to your shit. मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे शिट को टॉलरेट करूं अपने चैनल में. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये आपके फैमिली की मजबूरी हो सकती है, बिकॉज यू आर बॉर्न देयर, तो वो आपको टॉलरेट करेंगे, पर मैं आई एम अ टोटल स्ट्रेंजर टू यू. अगर आप मेरे चैनल पे आके मेरे ही स्पिरिट गाइड्स का मजाक उड़ाओगे, and that too on पूरा स्पिरिट गाइड्स का गाइडेंस देखने के बाद you throw this googly, I only trust on God, then what the hell are you doing on a tarot channel? Why are you not giving your time to your God? Goddamn, why are you giving so much time to tarot? Please answer this question. Why is there such a duality in what you are saying and what you are doing?
सो लेट द गॉड नेम नॉट बी यूज्ड बाय यू। जब आप इस तरह की बात करते हो ना, जब आप 5 घंटे टैरो गाइडेंस देखते रहते हो और जब पसंद नहीं आता टैरो गाइडेंस तो आप भगवान पे ट्रस्ट करते हैं, ना ही आप अपने आप को इंसल्ट करते हैं, आप अपने भगवान को भी इंसल्ट करते हैं। डू रिमेंबर दैट। एंड पीपल कैन वॉच दिस हिपोक्रेसी, पीपल कैन वॉच दिस ड्यूअलिटी, पीपल कैन वॉच एंड रीड आपकी कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है। ऑलराइट, get that straight in your head. And let me tell you, you cannot be on my channel and insulting my spirit guides guidance, because everything you do in the universe, it comes back to you. Do remember this and get this straight in your head. You have always seen my compassionate side. You have always seen my coaching wala side, always trying to guide you. But let me tell you, I am a very practical person and I mind my own fucking business. I help people who come to me for help. I take money, I guide them, I do my best. But I never try to become, this social worker. I am not a social worker. आप judgment करिए, आपकी मर्जी, आपका कर्मा आपको भरना पड़ेगा। आप कर्मा भरो ना भरो उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डजंट रियली मैटर। आई एम इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, आई एम इन दैट पार्ट ऑफ माई स्पिरिचुअल जर्नी। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी का ना बहुत सारा पार्ट्स होता है। एक स्पिरिचुअल जर्नी होता है जब आप हील करने लगते हैं तब, पर तभी भी आप में इतना हर्ट रहता है अपने सराउंडिंग के लिए, अपने लोगों के लिए, कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए कर्मा मांगते हैं। Thankfully, I am at that place in my spiritual journey जहां पे मैं किसी के लिए कर्मा भी नहीं मांगती हूँ। I only thank that person कि that person had a purpose to teach me in my life and I am thankful for that person that वो मेरे लाइफ में आके उसने मुझे ये चीज सिखाया। I say thank you to that person and I walk forward. ओके, आई डोंट लुक बैक विशिंग कर्मा फॉर दैट पर्सन। तो उस लेवल तक मैंने अपनी हीलिंग कर ली है। आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस इज द बेस्ट हीलिंग, बट आई एम पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ दैट यस, अभी मुझे किसी के लिए कर्मा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो कितना भी मुझे गाली दे रहा हो। मुझे पता है वो उसको अपनी हीलिंग की जरूरत है। मैं अपने काम पे फोकस रखती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। एनीवेज, लेट्स नॉट गेट इन देयर। बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सुंबुल और फहमान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जज करते हैं, क्या दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। दिस इज माई लास्ट एक्सप्लेनेशन कमिंग टू यू, बिकॉज मी, अगर मैं वहां पे कोई कॉन्टेंट डालती हूँ और लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो आई विल टेक दिस लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लैरिफाइंग थिंग्स, बट अल्टीमेटली आई थिंक I will take this decision of not doing Subul Fahman guidance anymore on my channel because I cannot take the responsibility of what you people understand. आपकी लाइफ की कितनी मेच्योरिटी है, आपकी दिमाग की कितनी मेच्योरिटी है, आप मेरे गाइडेंस को समझ पाते भी हैं कि नहीं समझ पाते हैं, अब तो मुझे बहुत ज्यादा ही डाउट हो रहा है। तो दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट टू हेल्पिंग यू एक्सप्लेन माई लास्ट गाइडेंस। ओके, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एनीवेज दिस इज नॉट अ पेड गाइडेंस कि मेरी बहुत ज्यादा यहाँ पे ओनरशिप है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो समझ में भी आया है, बट कुछ लोग हैं कि तो चलो हम उस पर बात करेंगे कि क्या है और नहीं है, तो शायद कुछ वहां पे नॉट्स खुल जाए। बट वेरी गुड कि आप लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे डिसेप्शन हो रहा है। बहुत वेरी गुड कि आप लोगों ने बताया कि मैं तो अपने बस गॉड पे ट्रस्ट करता हूँ। अब गॉड पे ट्रस्ट, अब आपको अपने टैरो गाइडेंस के लिए या तो दूसरे रीडर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, दूसरे रीडर्स के पास जाना पड़ेगा, विच आई एम श्योर आर वेरी गुड, बिकॉज आई डोंट फील द नीड टू लुक डाउन और पुट डाउन एनीबडी। आई नो एवरीबडी इज ग्रेट ओवर देयर। तो आपको दूसरे टैरो रीडर के पे जाना पड़ेगा या फिर आपको गॉड पे ट्रस्ट करना पड़ेगा गाइडेंस पे, क्योंकि इस चैनल पे अब आपको कोई गाइडेंस सुंबुल फहमान के लिए नहीं मिलेगा। लेट्स मूव ऑन। जो आप लोग बोल रहे हो कि सुंबुल और फहमान के डायनामिक्स, मैं अपने रीडिंग को एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज दिस इज माई लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं रीडिंग को एक्सप्लेन कर दूं। तो हियर इज माई लास्ट अटेम्प्ट टू हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड थिंग्स। इसके बावजूद भी अगर आप क्या समझते हैं वो आपकी मनस्थिति पे, आपकी मेच्योरिटी पे, आपकी अपनी कितना वर्क अपने आप पे किया है, आप किस तरह का सोच रखते हैं, परसेप्शन रखते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे कि फहमान ने बोला है ना, somebody's perception of you doesn't has to be a reality। एग्जैक्टली, क्योंकि हम चीजों को देखते हैं अपने नजरिए से, वो हमारा अपना नजरिया होता है, वो हमारे ओन लाइफ एक्सपीरियंस से छन छन के आता है, और हम सेम चीज को, कोई 6 देखता है, यहाँ पे 6 लिखा है, कोई यहां से देख रहा है तो उसके 6 दिखता है, कोई उधर से देखता है तो उसको 9 दिखता है। दोनों ही अपने जगह पे शायद सही है। एनीवेज, वो हमारी मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि हम ईगो से चीजों को देख रहे हैं या फिर हम सोल बेस्ड कंपैशन से चीजों को देख रहे हैं। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू माई रीडिंग, जहां पे मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी है आपको।
सुम्बुल और फहमान के रिलेशनशिप डायनामिक्स, हालांकि मुझे याद नहीं है बट थोड़ा बहुत जो मुझे जिस्ट याद है, आई थिंक आई कैन एक्सप्लेन इट फ्रॉम देयर, सो लेट्स गेट डाइव इन राइट इन देयर। सुम्बुल फहमान दो इंसान हैं, सुम्बुल और फहमान। उसी तरह से अदिति और फहमान भी दो इंसान हैं। दोनों, फहमान सुम्बुल से भी बात करता था, अभी फिलहाल बात नहीं करता है शायद, और अदिति से बात करता है। ये दोनों कपल हैं, ठीक है। सुम्बुल और फहमान के रिलेशनशिप में शायद आपको इस तरह का कुछ गाइडेंस मिला था कि यस, यहां पे कोई एक सिचुएशन बन रही है रीसेंट फ्यूचर में जहां पे यूनिवर्स उनको मौका देगा और करीब लाएगा, ठीक है। वेरी गुड। उसी रीडिंग में मैंने आपको यह भी बताया था कि सुम्बुल फहमान की रीडिंग में मैंने आपको यह भी बताया था कि इवन दो इनको यहां पे साथ में यूनिवर्स लेके आ रहा है, पर वहां पे एक और गाइडेंस था, क्योंकि मेरे गाइडेंस जो होते हैं 10 लेयर्ड गाइडेंस होते हैं, जिसको बहुत ही पेशेंटली और कामली समझना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोग यहां पे समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको टीवी सीरियल देखने की आदत होती है। टीवी सीरियल में एक ख्वाब दिखाते हैं ना कि आज ये हो गया, कल टीवी सीरियल में सब चीज ठीक हो गया, परसों टीवी सीरियल में शादी हो गई, चौथे टीवी सीरियल एपिसोड में बच्चे हो गए। तो रियल लाइफ में एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, ओके। तो टीवी सीरियल की दुनिया से हमको बाहर डेफिनेटली निकलना पड़ेगा अगर हम चीजों को सही ढंग से समझना चाहते हैं। इल्यूजन में रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, इल्यूजन में हम बिल्कुल हवा में हवाई जहाज बना के उड़ सकते हैं। लेट्स कम बैक टू द रीडिंग नाउ। यहां पे जब मैंने सुम्बुल फहमान की 2024 की रीडिंग की थी, तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि एक सिचुएशन बन रहा है जहां पे यूनिवर्स इन दोनों को साथ में लेके आएगा। उसी रीडिंग में मैंने आपको यह भी बताया था कि सुम्बुल फहमान की रीडिंग में ही बताया था कि इनके एनवायरमेंट में एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स बैठी हुई है, यानी कि इस क्वीन ऑफ वॉन्ड का इनके रिलेशनशिप में, क्योंकि ये सुम्बुल फहमान का गाइडेंस था और उनके गाइडेंस में एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स उनके एनवायरमेंट में बैठी हुई थी, तो इसका साया, इसका नजर इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स जो कि शैडो साइड में है, इनके रिलेशनशिप पे हमेशा रहेगा। यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो शैडो साइड में है, उसका शैडो इनके रिलेशनशिप पे हमेशा रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि सुम्बुल फहमान की जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है, अगर सुम्बुल फहमान मेरे पास आते और उनका वो मैं गाइडेंस करती, तो मैं बोलती कि यस, यूनिवर्स आपको जरूर मौका देगा पास आने का, अपने गिले शिकवे सॉर्ट आउट करने का मौका देगा यूनिवर्स। लेकिन यूनिवर्स बस मौका देता है, यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको यूनिवर्स, यानी कि सुम्बुल और फहमान को यूनिवर्स मौका दे रहा है, चीजें वो इस तरह से घुमाएगा आप यूनिवर्स में कि आप एक दूसरे के निकट आएंगे, पास में आएंगे, और आपको मौका मिलेगा कि आप अपने गिले शिकवे को सॉर्ट आउट करिए, अपने ईगो से ऊपर उठ के दूसरों के लिए कंपैशन एंड लव रखिए और चीजों को सॉर्ट आउट करिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज सुम्बुल्स फ्री विल एंड डिसीजन टू कंटिन्यू टू बी हर पापाज डियर डॉटर और फहमान्स डिसीजन टू स्टे विथ अदिति। ठीक है, अगर सुम्बुल डिसाइड करती है, इवन दो यूनिवर्स उनको साथ में लेके आता है कि आप अपने सिचुएशंस को सुधारिए, लेकिन सुम्बुल को डॉटर ही बने रहना है, फहमान से दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि फहमान ने उसको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है, फॉरगेटिंग ऑल द फैक्ट कि फहमान ने शायद बहुत बार उसको सपोर्ट भी किया होगा। इन सारी चीजों को इग्नोर करके अगर सुम्बुल, जो कि एक सोल है जिसके बहुत सारे रिलेशनशिप है, वो बस एक ही इंसान के लिए डॉटेड डॉटर रह के खड़ा होना चाहती है और फहमान को फहमान के लिए नॉन जजमेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाती है, अपने ईगो से बाहर नहीं निकल पाती है, अपने डॉटर की आइडेंटिटी से बाहर नहीं निकल पाती है और फहमान को कंटिन्यू टू ब्लेम करती है, तो ये उसका फ्री विल और डिसीजन है। इसमें मैं टैरो रीडर कुछ नहीं कर सकती हूं, इसमें यूनिवर्स भी उनके लिए कुछ नहीं करेगा, बिकॉज इट इज योर कर्मा। यू आर ऑन दिस अर्थ टू प्ले योर ओन रोल, लर्न योर ओन लेसन्स एंड फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ईगो एंड मूव टुवर्ड्स द सोल। इसमें मेरी रीडिंग गलत नहीं हो जाती है अगर सुम्बुल कंटिन्यूज टू बी इन हर ईगो एंड इन हर आइडेंटिटी ऑफ हर डॉटर एंड रिफ्यूजेस टू शो एनी कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द अदर गाय। इन द सेम वे, अगर फहमान अपने आप को ब्लेम करके सुम्बुल को जाके अगर उसको कुछ बोलना है अपनी तरफ से, अपने ईगो को सेपरेट करके सुम्बुल से वो अपनी तरफ से सॉरी बोलना चाहता है पर वो नहीं बोलता है, ब्लेमिंग फॉर वट एवर द रीजन, वो उसको ब्लेम करता है, या फिर उसने जिसके पिताजी के लिए ही कुछ बोला है जो कि सेल्फ फॉरगिवनेस का कार्ड उसको बार बार आता है, अगर वो इस गिल्ट में ही रहता है और ये बात शेयर नहीं करता है उससे फॉर सम रीजन,
तो ये जो यूनिवर्स ने जो सामंजस्य बनाया है, ये जो सिचुएशन क्रिएट किया है कि ये दोनों साथ में आए और अपने चीजों को रिजॉल्व करें, ये इनका अपना फ्री विल है कि ये डिसीजन कहां से लेते हैं। अगर ये दोनों ही अपने ईगो से डिसीजन लेके ये यूनिवर्स ने जो मौका दिया है उनको रिकंसिलिएशन करने का नहीं करते हैं, तो इसमें मेरी रीडिंग गलत नहीं हो जाती है, इसमें यूनिवर्स भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। इट इज योर लाइफ एंड यू विल हैव टू लर्न टू वॉक। इवन इफ यू फॉल, you will get an opportunity. Not only in this life, you will get many lives to learn your lessons. Please understand. अगर आपको मेरी रीडिंग समझ में नहीं आती है तो I am not creating a deception. It is the problem of your understanding. And I can always defend and connect my dots. And that's why I get big bucks paid for my guidance. Okay? और मेरे टाइम का कीमत है, भले ही आपके टाइम का कीमत नहीं है और आपके पास लंबा लंबा कमेंट्स लिखने का बहुत समय होता है, मेरे पास समय पढ़ने का भी समय नहीं है। ओके, सो प्लीज दूसरों को ब्लेम करने से, मेरे को जज करने के पहले, मेरे रीडिंग्स को जज करने के पहले, मेरे स्पिरिट गाइड्स का मैसेज देख देख के उनको जज करने के पहले इतनी एनर्जी तो मेरे स्पिरिट गाइड्स की लेते हो। एंड डोंट यू पीपल हैव एनी शेम? You people should be ashamed of yourself, especially some of you people who keep watching my guidance and tell that this is a deception. Goddamn, work on your understanding of life. वरना लाइफ में ना ऐसे ही लोगों से उल्लू बनते रहोगे तुम लोग और बेवकूफ बनते रहोगे, and on top of that you will keep blaming other people. Stop blaming me, stop blaming the guidance, take responsibility of your action. अगर कोई गाइडेंस पसंद नहीं आ रहा है, तुमको लगता है कि ये बंदा या बंदी उल्लू बना रही है, तुमको डिसेप्शंस मिल रहा है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन आएगा तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने? एंड वाई डू यू एक्सपेक्ट कि सुम्बुल फहमान जो कि एनर्जी है वो तुम्हारे लिए ऐसे चुटकी में मैनिफेस्ट होनी चाहिए? जो 1 साल की एनर्जी है, क्या वो टीवी सीरियल चल रहा है या एपिसोड चल रहा है क्या कि जो 1 साल की एनर्जी मैनिफेस्ट होनी है धीरे धीरे, और वो मोटा मोटा रोड ब्लॉक्स है जो तुमको दिख रहा है, बीच में तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो तुम्हारे लिए ये उनका लाइफ एक टीवी सीरियल बन गया है क्या कि आज हमको ये एपिसोड दिखाओ, नेक्स्ट एपिसोड में मुझे ये दिखाओ। टीवी सीरियल में टीआरपीज मिलते हैं, एड्स रहते हैं, बहुत सारा मनी माइंड किया रहता है। पहले का टीवी सीरियल्स क्या वीक में 1 बार आता था, लेकिन आजकल हम लोग किस दुनिया में रहते हैं? हम लोग इंस्टा ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है। हमको अभी टीवी सीरियल चाहिए, हमको वेब सीरीज चाहिए, हम बिंज वॉचिंग करेंगे। और वही आदत आपकी क्या हो गई है? यही जो बिंज वॉचिंग और इंस्टा ग्रेटिफिकेशन की आपकी आदत हो गई है ना, इसीलिए आप जब टैरो गाइडेंस पे 1 साल की एनर्जी देखते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि हे भगवान, ये 1 साल की एनर्जी कब मैनिफेस्ट होगी, और आप बिल्कुल उतावले हो जाते हो और अपना कंफ्यूजन और अपना डिसेप्शन दूसरों पे लादने की कोशिश करते हो। डोंट डू दैट, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर तुमको यहां पे डिसेप्शन फील होता है ना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एक्शन फॉर यू। मेक अ वाइज डिसीजन टुडे। क्योंकि मैं ये टीवी सीरियल की दुनिया से नहीं आती हूं। आई एम अ सेल्फ हेल्प कोच। आई कम फ्रॉम अ वर्ल्ड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट वेयर आई टेल माई स्टूडेंट्स एंड आई टेल माई क्लाइंट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. Stop blaming the people around you, and therefore you also stop blaming the things on others and take responsibility of what you are watching and what you are consuming. I am not responsible for you if you are on my channel and if you don't like my content. Do you understand that? All right, so let's get back to the reading again. तो यहाँ पे यूनिवर्स ने चांस दिया है, जिस तरह से यूनिवर्स हमको भी चांस देता है. इट्स नॉट अबाउट सुम्बुल एंड फहमान, इट इज अबाउट जस्ट ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ. यूनिवर्स आपको मौके देगा, बहुत मौके देगा, और इतना मौका देगा ना कि आपको नेक्स्ट जन्म में भी मौका देगा. बट वो हमारी प्रॉब्लम है. वो अच्छा तो यही है कि क्योंकि ये जो अर्थ का लाइफ होता है ना, इट इज बेसिकली अ लाइफ ऑफ जहां पे हम बहुत दुख और तकलीफ वाला लाइफ है. यहाँ पे इमोशंस हाई रहते हैं, हर चीज रहता है. तो यहाँ पे बार बार आने से अच्छा है कि हम अपने लेसन्स को पहले ही लर्न कर लें. बट नेवरदलेस, जहां पे मैं बता रही थी कि यहाँ पे यूनिवर्स दोनों ही सुम्बुल और फहमान को मौका दे रहा है कि भाई तुमको हम पास में लाते हैं, सॉर्ट आउट करना है तो सॉर्ट आउट करो. अगर ईगो से काम लेना है, दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर द यूनिवर्स. वो उसका फ्री विल है. फ्री विल में आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, तो मैं कैसे इंटरफेयर कर सकती हूं? Tarot readers give you clarity. Tarot readers don't create things for you. Even आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपके लिए चीजें नहीं करेगी, वो आपको बस हेल्प करेगी.
आपको ही स्टेप्स लेके सीखना है चलना, ठीक है ना। मैं आपके सुंबुल फार्मा के लिए कुछ नहीं कर सकती हूं अदर देन गिविंग क्लैरिटी टू यू पीपल। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकंड। तो यहां पे यूनिवर्स ने सिचुएशन बनाई है उनके लिए कि मैटर को सॉर्ट आउट करो। अब उनका फ्री विल पे डिपेंड करता है, उनकी मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि वो अपने ईगो बेस्ड डिसीजंस लेते हैं या सोल बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। यहां पे जो ये सिचुएशन बना है, जब वहां पे एक दूसरे के साथ आके मिलेंगे, लॉट ऑफ वाटर हैज गॉन अंडर द ब्रिज। वो बंदी के भी लाइफ में जो उसके फादर ने शादी की थी, अब प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गया, जो कि सुंबुल के लास्ट रीडिंग से आपको पता चल जाना चाहिए था। हालांकि आई हैव नॉट ओवर हाइप्ड दैट गाइडेंस, लेकिन यस, अब शादी हो गई है, अब फैमिली में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। अब बंदी 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में चली गई है। अब वो उस फाहमान को मिस करने लगी है, जहां पे वो बस उसको फैमिली में बस फादर के लिए उसने फादर के लिए उसने फाहमान को बिल्कुल दुत्कार दिया। हालांकि वो बंदे ने उसके लिए बहुत किया होगा, और जैसे कि सुंबुल के रीडिंग में ही पता चलता था कि वो हमेशा उसका पार्टनरशिप को मिस करती थी। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो एक टांग पे खड़ा रहता था वो बंदा। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि जब फाहमान गया था उसके बाद ही बिग बॉस में सुंबुल का हर चीज चेंज हुआ था, एनर्जी चेंज हुई थी। तो ये बंदा जिसने सुंबुल के लिए एक पैर पे वो खड़ा रहा था, उसने एक गलती की और सुंबुल ने उसको थोड़ा सा भी कंसिडर नहीं किया, और आज वो वैलो कर रहा है, अपने लिए थोड़ा बहुत हेल्प खोज रहा है किसी और बंदी में जिसमें वो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि फाहमान को लोग पसंद नहीं करते हैं काफी ज्यादा लोग, तो उसको बस मौका उनको मिल गया है फाहमान को ब्लेम करने का। तो ब्लेम करते रहो। अल्टीमेटली ये जितना ब्लेम जो तुम दूसरों को देते हो ना, एट द सेम टाइम यू आर साइनिंग अ बॉन्ड कि ये सारा ब्लेम मेरे पे भी कहीं ना कहीं से आएगा। क्योंकि आप जैसी एनर्जी दूसरों को देते हो ना, उसी समय आप बॉन्ड साइन करते हैं कि उतनी एनर्जी इनफैक्ट मल्टीपल्स ऑफ दैट एनर्जी तुम खुद लोगे, क्योंकि यूनिवर्स को तुमको भी सबक सिखाना है। दैट इज हाउ द कर्मा गेट्स बैलेंस्ड। तो अगर तुम फाहमान को जज कर रहे हो, नहीं जज कर रहे हो, उससे कोई फाहमान को फर्क पड़ता नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली जजमेंट करोगे, जजमेंट मिलेगा। जेलसी करोगे, जेलसी मिलेगा। अगेन आई रिपीट इट, यहां पे जो सिचुएशन बनी हुई है, ये फाहमान और सुंबुल के फ्री विल पे डिपेंड करता है कि वो मैच्योर डिसीजंस लेते हैं या फिर वो ईगो बेस्ड डिसीजन लेके ये मौका को गवाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टैरो वर्क्स नाउ? और यहां पे सिचुएशन मिल रहा है, उनको एक मौका दे रहा है यूनिवर्स मिलके आने के लिए। इसका मतलब आप ये क्यों समझ लेते हैं कि उनके लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होगा, कोई चैलेंज थ्रो नहीं करेगा? क्या मान लेते हैं कि इनकी ये लव स्टोरी है? बॉलीवुड की मूवीज नहीं देखते हो क्या? जब किसी का लव स्टोरी, कोई बॉलीवुड की लव स्टोरी निकाल लो, मैंने प्यार किया निकाल दो, या फिर मैंने प्यार किया है, या फिर DDLJ ले लो। दीज आर द लव स्टोरीज। लव स्टोरीज में एक विलन हमेशा ही रहता है, बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी। अगर फाहमान और सुंबुल का भी मान लेते हैं कि लव स्टोरी है, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, हटाओ ये फालतू की बात है, ये लव स्टोरी है, मान लेते हैं कि ये लव स्टोरी है, तो उसमें विलन तो रहेगा ही। आपको कोई भी चीज इस अर्थ पे बिना कुछ लेसन लर्न किए हुए नहीं मिल सकती है। और अगर ये दोनों एक कपल हैं जो कि मान लेते हैं कि सोलमेट्स हैं, जो कि सोल लेसन सिखाने के लिए आए हैं, या ट्विन फ्लेम है, या जो भी हैं, तो इन दोनों को जब तक ये अपने ईगो बेस्ड डिसीजन से ऊपर नहीं उठते हैं, ये क्यों एक दूसरे के पास आएंगे? आखिर ये इन दोनों का एक दूसरे के लाइफ में आना कुछ सोल लेसन के लिए ही तो होगा ना। और जब तक वो सोल लेसन नहीं लर्न करेंगे, क्या वो आपकी खुशी के लिए बस यूनिवर्स इनको मिला देगा कि वो अपने सोल लेसन करेंगे, सीखेंगे, तभी वो पास में आएंगे? यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसके कितने बड़े फैन हो। यूनिवर्स को फर्क इसी से पड़ता है कि ये दो सोल हैं, सुंबुल और फाहमान जो सोल हैं, वो अपना सोल लेसन लर्न करे, जो कि इन्होंने एक दूसरे के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ है। जस्ट बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम सुंबुल फाहमान करते रहने के लिए, तो यूनिवर्स अपनी चीजों को बदल के आपके हैप्पीनेस के लिए, आपको पीपल प्लीज करने के लिए जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं करेगा। यूनिवर्स चीजें इनको तभी देगा जब ये खुद उसके लिए वर्कआउट करेंगे। यूनिवर्स बस मौका क्रिएट करता है ताकि आप अपने इंस्पायर्ड एक्शंस लीजिए। ईगो से अलग हट के डिसीजन ले सकते हो,
ले सकते हो तो वेरी गुड, यू मूव अप द स्पिरिचुअलिटी लैडर। आपको जो मिलना है आपको मिल जाता है, दोस्ती होनी है हो जाता है। नहीं, हम अपने ईगो में रहेंगे, हम बिल्कुल डॉटेड डॉटर बन के रहेंगे, आइडेंटिटी में, बस डॉटर की आइडेंटिटी में रहेंगे। उसने जो मुझे हेल्प किया है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउ डेयर ही से अ थिंग अबाउट माई फादर। क्या हम उसको फॉरगिवनेस कर सकते हैं? नहीं, हम उसको बिल्कुल फॉरगिवनेस नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स बोलेगा नो प्रॉब्लम, यू विल गेट अनदर साइकिल, पूरा 10 पूरा फूल से लेके वर्ल्ड तक का एक अनदर साइकिल में आप एंटर कर जाते हो, जहां पे आपको फिर से वो सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी जब तक कि आप सीखते नहीं हो। दिस इज द स्पिरिचुअल लेसन दैट हैपेंस। अगर पता नहीं है तो जाके पता करो बिफोर यू जज मी। तुम लोगों से बहुत बाबू दादा कर करके बात करके ना मैं थक गई हूं। बहुत ज्यादा तुमको कंपैशन तुम लोग सबको दिखा दिया है, और बहुत ज्यादा तुम लोगों को आके फालतू का एक्सप्लेनेशन भी देती हूं। अब ये सारी चीजें मैं बंद करने वाली हूं। यू पीपल आर टेकिंग माई टाइम टू मच फॉर ग्रांटेड। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता है तुम कब चाहते हो इनकी शादी हो जाए। यूनिवर्स को फर्क पड़ता है कि ये दोनों सोल जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आए हैं अपने लिए, क्या वो सोल कॉन्ट्रैक्ट सीखते हैं? क्या सुंबुल उसको फॉरगिव कर सकती है? नहीं, सुंबुल बोलती है मैं उसको फॉरगिव नहीं कर सकती हूं, मैं हील नहीं हुई हूं। यूनिवर्स बोलेगा नो प्रॉब्लम, टेक योर फ्री विल का डिसीजन, यू विल हैव मोर चांसेस टू लर्न, यू विल गो थ्रू अनदर साइकिल। और हम सबको पता है, इतना तो तुमको पता है ना कि जब साइकिल में आते हो या यूनिवर्स जब अर्थ पे आते हैं तो अर्थ की जिंदगी इतनी इजी नहीं होती है। इमोशंस का हाई एंड लो रहता है, कोई भी अर्थ पे आना नहीं चाहता है, पर यूनिवर्स तुमको कभी भी मौके की कमी नहीं करने देगा। इस जन्म में तुम पूरा साइकिल्स में जाते रहो, नेक्स्ट जन्म में जाओ। अरे एक लेसन्स ना लोग जन्मों सीखते हैं, तो सुंबुल भी अपने फॉरगिवनेस की लेसन ना जन्मों सीख सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्स दे रहा है उन दोनों को मिलने के लिए उसी में उसको सीखना है। ये तो तुम लोगों को उतावलापन हो रहा है कि ये लोगों को मिलना है मिलना है मिलना है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को टीवी सीरियल में देख देख के ये सब आदत हो गया है ना। टीवी सीरियल में वो जो आलतू फालतू झूठा झूठा दिखाते रहते हैं, तो आप लोगों की ब्रेन की कंडीशनिंग हो गई है कि रियल लाइफ भी ऐसा ही होता है। रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, अपने टीवी सीरियल की दुनिया से बाहर आ जाइए। और अगर सुंबुल सोचती है कि नहीं मैं फहमान को फॉरगिव नहीं कर सकती हूं, इसने बुरा किया है, तो यूनिवर्स बोलेगा फाइन, टेक योर टाइम टू हील, गो थ्रू द साइकिल अगेन। उसी तरह से फहमान के लिए भी है कि क्या तुमने जो किया है, क्या तुम सुंबुल को जाके एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों तुमने ऐसा किया? नो, मैं अपने ईगो में रहूंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तो उसके लिए अच्छा किया था, या मैंने इसलिए किया था क्योंकि उसने मुझे बताया था ये सब बात। नहीं, मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वेरी गुड फहमान, यू ऑल्सो टेक योर टाइम, गो थ्रू द साइकिल अगेन। सो बोथ विल कीप गोइंग थ्रू देयर साइकिल। आई डोंट डिसाइड देयर। आपके लेसन्स आप कब सीखते हो आप पे डिपेंड करता है, किसी टैरो रीडर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर समझ में नहीं आता है तो मत देखा करो चीजों को, क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है कि वो अपना प्रेशियस टाइम डाल के इतना सारा चीज एक्सप्लेन करे। मैं लास्ट टाइम इसीलिए एक्सप्लेन कर दे रही हूं क्योंकि ये मेरे गाइडेंस से रिलेटेड है, और क्योंकि मैं बार बार आपको चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूं, एंड देयरफॉर आई एम टेकिंग अ डिसीजन नॉट टू डू दीज गाइडेंसेस एनी मोर। नाउ लेट्स मूव ऑन। आप लोगों के दिमाग में ना अपना फितुर रहता है, बेसिकली टीवी सीरियल देख देख के ना अपना टीवी सीरियल का स्क्रिप्ट राइटिंग आप लोग करते रहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, यहां पे दो लोग हैं, सुंबुल और फहमान है, यहां पे एक और भी है कोई, ठीक है? तो इनको रिलेशनशिप, ये सुंबुल फहमान है, इनको यूनिवर्स मौका देगा कि एक समय तो आएगा जहां पे तुम अपने रिकंसिलिएशंस कर सकते हो, अपने सोल लेसन्स लर्न कर सकते हो, एक हायर रोड ले सकते हो, ईगो से ऊपर उठ सकते हो। और जब आप ये कर लेते हैं तो ये अपना लेसन्स लर्न कर लेते हैं और लाइफ में नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेसन्स नहीं लर्न करते हो, यूनिवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से लेसन लर्न करिए। यूनिवर्स तुमको बहुत टाइम देता है, जैसा मैंने बोला यूनिवर्स आपको जन्मों देगा एक लेसन को लर्न करने के लिए। एक फॉरगिवनेस सीख नहीं पा रहे हो ना, यूनिवर्स तुमको बार बार ऐसे लोगों के सामने लाएगा जो कि तुमको परेशान करेंगे, तुम उनको हेट करोगे और तुमको उनको फॉरगिव करना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट जन्म में इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगा। तब तुमको, जब जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था ना कि जब तक तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारे पीठ में 50 सॉर्ड्स हैं और तुम जब तक उस सिचुएशन में नहीं पहुंच जाते हो कि नहीं आई एम फाइन,
क्यों? क्योंकि तुम उस समय उस कंपैशन लेवल में हो जाते हो जहां पे तुमको अपना दुख नहीं दिखता, तुमको दूसरों का दुख दिखता है। 550 सोर्ड के साथ भी तुम दूसरों को ही हेल्प करते रहते हो। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो जिनके पास कुछ भी नहीं है पर वो अपना सारा चीज दूसरों को दे देते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाते हैं, वो अपना लेसन्स लर्न कर लेते हैं। किसी लोगों को देखोगे कि एक सोर्ड भी है, पेट एक छोटा सा दुख होता है और उससे वो विचलित हो जाते हैं और उनको वो भगवान को गाली देने लगते हैं, मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, तुम ठीक नहीं हो, और पूरी अपनी ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं। कोई ग्रैटिट्यूड नहीं लर्न कर पा रहा है आदमी, कोई कंपैशन नहीं लर्न कर पा रहा है, उसको अपना ही दुख सबसे ज्यादा बड़ा दिखता है, स्पिरिचुअलिटी में नीचे जा रहा है। यूनिवर्स विल गिव देम चांसेस एंड ऐसे मौके क्रिएट करेंगे कि वो चीज़ों को सीख पाएं, और वो सोल खुद ये लिख के आया है सीखने के लिए कि यस तुम मुझे टॉर्चर करना, मैं तुमको कंपैशन दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, नहीं सीखूंगा अगला जन्म फिर से मिलेगा सीखने के लिए। बट भाई एक ही लेसन कितने जन्म तक सीखते रहोगे, अच्छा है कि इसी जन्म में सीख के चले जाओ। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रही थी कि यहाँ पे सुम्बुल और फामान को एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से अपने मैटर को सॉर्ट आउट करने का। दोनों की अपनी फ्री विल है, तो मैटर को यूज करते हैं या फिर ऐसे ही जाने देते हैं, अपने ईगो को ही चूज करते हैं। नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने बार बार रिपीट कर दिया, आपके दिमाग में ठोक बजा के बैठा दिया कि यूनिवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये तो आपको प्रॉब्लम है ना, टीवी सीरियल देख देख के आदत हो गई है कि अभी होना चाहिए हर चीज, पर यूनिवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जन्म में नहीं सीखोगे, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म मिलता रहेगा एक एक लेसन को सीख करने के लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरी बात मैं यहां पे बता दूं, जस्ट बिकॉज यहां पे यूनिवर्स को मौका मिल रहा है कि ये दोनों आके बैठें, तो आप लोगों ने ये ख्याली पुलाव क्यों बना लिया कि एकदम लवी डोवी हो जाएगा हर चीज, और यहाँ पे एकदम गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे और ये लोग बिल्कुल कपल बन जाएंगे और आप लोगों को पीपल प्लीज कर देंगे। और यूनिवर्स को तो जैसे बहुत पड़ी है आपको पीपल प्लीज करने की ना, और सब चीज हैप्पी डैपी हो जाएगा। अरे यहां पे लेसन्स लर्न करेंगे तब वो एस ऑफ वॉन्ड का दरवाजा खुलेगा। पहले फर्स्ट स्टेप चढ़ोगे तब 10 स्टेप पे पहुंचोगे। जब फर्स्ट स्टेप ही क्रॉस नहीं करोगे तो एस ऑफ वॉन्ड का दरवाजा कहां से खुलेगा भाई? रीडिंग समझ में नहीं आती तो मत देखा करो। सिंपल चीज तुम लोगों को समझ में नहीं आता है और बड़ी बड़ी बातें तुम लोग कमेंट सेक्शन में करते हो। थोड़ा सीरियस पढ़ाई लिखाई किया करो, थोड़ा से बुद्धि को खोलो। मैम आपने तो बोला था एस ऑफ वॉन्ड आएगा, ये लोग सब कपल बन जाएंगे, ये लोग तो कपल बन जाएंगे, एस ऑफ वॉन्ड है, आप देख रहे हो कि इसके आगे चल रहे हैं। अरे थोड़ा तो अपना बुद्धि यूज करो, क्या तुम लोग 6 साल के बच्चे हो? एक स्टेप, ये रीसेंट फ्यूचर है, ये लेट फ्यूचर है। जब तक रीसेंट फ्यूचर का लेसन पार करके जब फर्स्ट स्टेप पार करोगे नहीं तो 10 स्टेप पे क्या घंटा पहुंचेगा कोई? क्या तुम लोगों को बेसिक चीजें समझ में नहीं आती? और मान लो कि यूनिवर्स ने, मैंने टैरो जीनी, तुमने तो बोला था कि ये तो एक दूसरे के साथ रहेंगे, अब तो तुम कुछ और बोल रही हो। तो इसी रीडिंग में क्या मैंने बताया नहीं था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, एक शैडो वाली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की नजर इन पे रहेगी? और यूनिवर्स ने कब बोला है कि भाई तुमको ये जो 2 कपल हो तुम लोग, लव स्टोरी जो चल रहा है, तुमको चैलेंज इसमें देने कोई नहीं आएगा, तुम्हारा अपना ही चैलेंज रहेगा। ये तो अपने ईगो में इन लोग अलग हो गए हैं। एक इनका चैलेंज ये है, एक्सटर्नल चैलेंज भी है। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको चैलेंज थ्रो करेगा, आपको एक दूसरे के साथ आना है ना, अपना चैलेंज को सॉल्व करो, अपने ईगो को सॉर्ट आउट करो। उसके बाद एक्सटर्नल चैलेंज भी है यहां पे, ठीक है? यूनिवर्स ने कब बोला है कि चीजें एकदम इजीली हो जाएंगी? ये तो तुम मान के बैठे हुए हो ना कि यूनिवर्स अब तो ये साथ में आ गए हैं, अब तो हर चीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपना सारा काम धाम छोड़ के बैठे हुए हैं इनकी शादी करने के लिए। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अपना काम धाम छोड़ के इनके दिमाग में इनके अननेसेसरी इंटरेस्ट इनके लाइफ में ले रहे हो। और ट्रस्ट मी, आज के बाद मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद से मैं तुम लोगों को तुम्हारे हाल पे छोड़ रही हूं। And this is not an emotional decision. I have other things to do. So I am very happy कि कृष्णा ने तुम लोगों के थ्रू मेरे लिए रास्ता बना दिया है कि मेरे लिए अब उस रास्ते पे जाना आसान हो गया है। क्योंकि I also have to grow in my career, no? There are lucrative projects for me to take on. Why should I waste my time over here? इसीलिए मेरा लास्ट एक्सप्लेनेशन है तुम लोगों के लिए, देखो या मत देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। तो जब मैंने यहां पे बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो यहां पे बोली हूं, तो तुम लोग मानकर बैठ गए क्या कि अब तो सब चीज ठीक होना चाहिए।
नो, हर चीज ठीक नहीं होगा। ये एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है इन दोनों के लिए। क्या अभी भी ईगो में हो? क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। फहमान भी अपने टावर मूवमेंट से जा रहा है, सुम्बुल के भी अपने पर्सनल लाइफ में, ये एक्सटेंडेड फैमिली, इसके पापा की शादी वाली लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं, अब वो उसको मिस करने लगी है। तो दोनों ही लोगों ने अपने डिफिकल्ट फेजेस देखे हैं जब एक दूसरे से अलग हुए थे। तो अब लॉट ऑफ वाटर हैज गॉन डाउन द ब्रिज। इसका मतलब समझते हो? लॉट ऑफ वाटर हैज गॉन डाउन द ब्रिज। दोनों ने सफर किया है। अब इस सफरिंग के बाद, सफरिंग क्यों आता है लाइफ में? ताकि हम अपने सोल लेसन्स को सीख सके, थोड़ा सा हमारी बुद्धि खुल पाए। लेकिन इतने सफरिंग के बाद भी अगर इनकी बुद्धि नहीं खुली है, सुम्बुल अपने डॉटर की ही आइडेंटिटी में है, फहमान को फॉरगिव नहीं कर पा रही है, फहमान अपने कदम उसको एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं बढ़ा पा रहा है कि मेरी क्या गलती थी, मैंने ये ऐसे किया है। दोनों अपने ईगो में रह के अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं। यूनिवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्स विल गिव देम चांस। अनलाइक यू पीपल, यूनिवर्स विल गिव देम चांस टू लर्न देयर लेसन्स। यूनिवर्स तुमको सर पे ना हथौड़े रख के नहीं बोलता कि तुमको तो अभी सीखना है। तो वाई आर यू इमेजिनिंग? इफ यू इमेजिन्ड कि यहां पे ये दोनों यूनिवर्स मौके देगा इनको क्रिएट एक साथ आके सॉर्ट आउट करने का, तो तुमने ये क्यों सोचा कि यहां से अब सब चीज हैप्पी 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 होना चाहिए? अगर तुमने ये सोचा है, अगर आपने ये सोचा है, तो इसमें आपकी गलती है या मेरी गलती है? तो यहां पे तुम अपनी बुद्धि के कारण डिसेप्शन में जा रहे हो, या मेरे एक्सप्लेनेशन के कारण डिसेप्शन में जा रहे हो, या मेरे स्पिरिट गाइड्स के गाइडेंस के कारण डिसेप्शन में जा रहे हो? आप डिसेप्शन में जा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा टीवी सीरियल देखते हैं और आपको आदत हो गई है कि लाइफ भी एक टीवी सीरियल की तरह खटाक 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 करके आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ में ऐसा नहीं होता। और यहां पे तो इनको अपने चैलेंजेस, अपने ईगो को डील करना है। यहां पे एक और चक्रव्यूह है क्वीन ऑफ वॉन्स इन रिवर्स का, वो भी यूनिवर्स भी चैलेंज थ्रो करेगा ना। तुम दोनों को पास में आना है ना, तुम लोग बहुत आइडियल कपल बनना चाहते हो ना, अपने ईगो को सॉर्ट आउट करो। जब ईगो को सॉर्ट आउट करोगे तो दूसरा चक्रव्यूह आएगा इस बंदी का, जो कि इसके एनवायरमेंट में बैठी है। उसी रीडिंग में आया था ये वाला बात। तो जब यहां पे डोंट यू पीपल हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग? जब ये सुम्बुल फहमान के गाइडेंस में ये बंदी इनके एनवायरमेंट में बैठी है, तो क्या फहमान और अदिति का क्लोजनेस है, या फिर वो जो बेसिकली क्या है कि वो उससे जैसे अभी बातचीत करता है, उसकी कंपनी में रहता है, वो ही विल कंटिन्यू टू बी इन हिज कंपनी, एंड दिस गर्ल इन दैट वे विल कंटिन्यू टू इंटरफेयर इन देयर लाइफ। हाउ एल्स डू यू थिंक कि सुम्बुल फहमान के लाइफ में जो ये क्वीन ऑफ वॉन्स यहां पे कार्ड में आई थी, क्या ऐसे ही होता है कि लाइफ माने कि दिस इज द मैप, दिस इज नॉट द माई गुडनेस, आई रियली डोंट नो हाउ टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। हाउ आर द टू रीडिंग्स डिफरेंट? एक्सप्लेन मी। ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना कि एक रीडिंग में ये बता रही हूं, दूसरे रीडिंग में ये बता रही हूं, हाउ इज इट डिफरेंट? हाउ द टू रीडिंग्स आर डिफरेंट? डोंट यू पीपल हैव अ बेसिक कॉमन सेंस? जब सुम्बुल फहमान की रीडिंग में मैंने बोला कि ये अदिति का शैडो हमेशा इसके ऊपर रहेगा, तो जब अदिति और फहमान की रीडिंग में मैंने बोला कि ये दोनों मिल रहे हैं, तो यही तो शैडो है। तो हाउ इज द रीडिंग डिफरेंट? हाउ इज द गॉड डैम रीडिंग डिफरेंट? टेल मी। Isn't Aditi and Fahman staying together, जैसा कि अभी वो स्टे कर रहे हैं, the same thing as these, ये अदिति का इनके ऊपर चक्कर है ना? क्योंकि सुम्बुल फहमान से बात नहीं करती है, वो अलग रहती है, तो ये इसके साथ रहती है। यही तो है, यही तो इनके रिलेशनशिप में गोल है, लाइक दिस। सो हाउ इज द रीडिंग डिफरेंट? एक बात को मेरी तोड़ मरोड़ करने की कोशिश मत करो। आई एम बियॉन्ड योर प्रोपोगेंडा। मुझे लाइफ में कंस्ट्रक्टिव काम करना है, ढंग के लोगों के साथ काम करना है जो कि अपने लाइफ पे वर्क करना चाहते हैं। तुम लोग के ड्रामा में मुझे पार्टिसिपेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डोंट इन्वॉल्व मी इन योर प्रोपोगेंडा।
एंड गॉड डैम डोंट टेल एनीथिंग अबाउट माई स्पिरिट गाइड्स. अगर पसंद नहीं है गाइडेंस, गो एंड रिस्पेक्ट योर गॉड डैम. एटलीस्ट अपने गॉड को तो रिस्पेक्ट करो, जो जिसका नाम तुम लोग थ्रो करते रहते हो ना. दिन भर देखते हो 5-5 घंटे टैरो गाइडेंस, और भगवान को बोलते हो. भगवान भी तुम्हारा ना, तुम्हारा गॉड तुम पे हंसता होगा कि ये देखो, एक समय मेरे पे इन्वेस्ट नहीं करना है, दिन भर टैरो गाइडेंस देखना है, दिन भर टीवी सीरियल्स देखना है, दिन भर इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, पर जब जरूरत होती है तो मेरा नाम थ्रो करते हो तुम लोग. उस बंदी को मैंने ब्लॉक कर दिया है बिकॉज आई हेट हिपोक्रेसी. आई एम वेरी ओपन टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट आई एम नॉट हियर टू टेक योर शिट. मुझे 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड भी नहीं लगता है किसी को ब्लॉक करने में. यूट्यूब में अगर किसी को ब्लॉक करना चाहते हो, उसके कमेंट्स नहीं आएंगे आपके चैनल पे. 5 सेकंड भी नहीं लगता, 3 सेकंड लगता है. बट स्टिल आई टॉलरेट लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. बट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट हियर टू टेक योर शिट. ओवर स्मार्ट बनोगे, आई विल ब्लॉक यू एंड फॉरगेट इट. उस बंदी को जिसने गॉड का नाम थ्रो किया था ना, ब्लॉक्ड हिट, दैट पर्सन इज ब्लॉक्ड. और ये डिसेप्शन वाला इंसान भी ब्लॉक होगा अब, क्योंकि आई विल नॉट गिव यू माई प्लेटफॉर्म, माई स्पेस, माई चैनल टू शिट अराउंड. आई वॉन्ट मैच्योर पीपल. कोई भी एक समझदार कंपनी चाहता है. अगर तुम में मैच्योरिटी नहीं है, तुमको शिट में ही गोल गोल घूमना है, गो एंड डू ऑन अदर चैनल्स, डोंट डू ऑन माई चैनल. आई डू माई थिंग्स एब्सोल्युटली इन अ स्पिरिचुअल वे. आई एम नॉट टैरो जीनी, आई एम स्पिरिचुअल टैरो जीनी. फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज फर्स्ट. इवन इस शिटी रीडिंग्स में मैंने जितनी स्पिरिचुअलिटी तुम लोगों को सिखाने की कोशिश की है, लेकिन इट वॉज माई मिस्टेक. And I don't have a problem. It's okay. I will move forward. I stay focused on my goal. But just because तुमको मेरी रीडिंग समझ में नहीं आती है, don't judge. Judge yourself. अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो खुद को क्रिटिसाइज करो. अगर किसी को जेलसी होना है तो अपने अंदर जेलसी देखो. तुम्हारे लिए स्पिरिट गाइड्स सुम्बुल, जस्ट बिकॉज सुम्बुल फाहमान का शादी नहीं कर देंगे. उनको अपने लेसन्स लर्न कर रहे हैं अर्थ पे आके. दे विल डू दैट. नोबडी केयर्स टू पीपल प्लीज यू, लीस्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्स. यूनिवर्स इज नॉट देयर टू पीपल प्लीज यू. यूनिवर्स चाहता है आप कितने बार भी गिरे उठे, आपको अपने लेसन्स लर्न करने हैं. And that is why I tell universe doesn't care for failures and success, happiness and sadness. क्योंकि सोल अपने लेसन को लर्न करने आया है. सुम्बुल और फाहमान एक दूसरे के लाइफ में एक दूसरे को चीज़ें सिखाने के लिए आए हैं, शादी करने के लिए नहीं आए हैं. वो तो तुम चाहते हो कि वो शादी कर लें. तो ये जो मेरे को ज्ञान पढ़ा रहे हो ना डिसेप्शन का, अपनी बुद्धि खोलिए, बुद्धि खोलो. बिकॉज नोबडी विल टेक ऑल दिस टाइम टू एक्सप्लेन योर थिंग्स. वो तो मैंने अपने गाइडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन कर दिया. अब तो तुमको अपने गॉड पे और दूसरों पे ही डिपेंड करना पड़ेगा सुम्बुल फाहमान के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आई विल सेव माई टाइम नाउ. गुड लक एंड गॉड ब्लेस.